پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں مدرسہ غوثیہ کے تمام مدرسین خصوصاً حافظ و قاری شکیل صاحب اور مدرسہ غوثیہ کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے محنت کی، تعاون کیا اور آپ کے مدرسے سے یہ 7 حفاظ کرام یہاں سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے ان کو جس وقت میں داخل کیا تھا یہ ان پڑھ تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اور لیکن یہاں کے مدرسین نے جو محنت کی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسین کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جاہل ان پڑھ کو وہ حافظ قرآن، قاری قرآن اور قوم کی راہبر بنا کر قوم کے سامنے میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ نے جو روپیے کی شکل میں، اناج کی شکل میں آپ نے مدد کی اس مدرسے کی، یہ جو آپ کو پلٹا رہے ہیں، یہ قوم کی رہبر کی شکل میں، حافظ قرآن اور قاری قرآن کی شکل میں آپ کو پلٹا رہے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی ان کو دیا، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب جاریہ یعنی ہمیشہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کے بچے بھتیجے جو بھی حافظ قرآن، قاری قرآن یا عالم بنے تو دستار بندی کے وقت میں جو آپ اس کو ہار پھول کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا کاغذ کا پھول، روپیے کا ہار، یہ سب پہننا جائز نہیں۔ آپ جب بھی پہنائیں جو اصلی پھول ہے اس کا ہار پہنائیں۔ یہ کاغذ کا اور روپیے وغیرہ کا یہ ہار ہے، یہ ہاتھ میں دے دیجئے لیکن پہنائیے نہیں۔ میں تمام حفاظ کرام سے عرض کروں گا کہ آپ کاغذ کے ہار کو اتار کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے، اور اگر پیسے کا ہار ہے تو اس کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے۔ ہرگز ہرگز یہ آئندہ یہ نہ کریں۔ اور جب یہ حافظ قرآن ہیں، یہ قاری قرآن ہیں اور قوم کا یہ رہبر بن کر جا رہے ہیں، تو یہاں سے جائیں تو وہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے جائیں، اور یہ دستار بندی ہی کے دن یہ خلاف شرع کام کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ ان کے والدین، ان کے چچا ماموں وغیرہ کہیں بھی کبھی بھی جائیے تو اصلی پھول لے کر جائیے، ہرگز ہرگز یہ کاغذ وغیرہ کا مالا لے کر نہ جائیں، اور اگر آپ لے کر جاتے تو اس کے ہاتھ میں دے دیجئے۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی اس نصیحت کو یاد رکھیں۔ آج میری گفتگو صرف ایک روایت پر ہوگی، اور یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3-4 روز سے بھوکا تھا، میرے اندر نقاہت آ گئی تھی، میں کمزور ہو گیا تھا۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب مسلمان کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو درخت کی پتیاں کھا کھا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا
तो कंकड़ियों में पानी डालकर उबालकर उनको शोरबा बनाकर पीते थे और कंकड़ियों को चूस चूस कर फेंकते थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जबकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे एक नौजवान नमाज अदा करता था, लेकिन जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम फेरते थे, वो नौजवान दुआ में शरीक नहीं होता और घर की तरफ रवाना हो जाता। 1 रोज, 2 रोज, 8 रोज, 10 रोज, 1 महीना सहाबाए किराम ने शिकायत की नबी की बारगाह में, फला नौजवान नमाज तो पढ़ता आपके पीछे लेकिन वह दुआ में शरीक नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलवाया, इरशाद फरमाते तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा फिर सलाम फेरने के बाद कहां चले जाते हो, दुआ में शरीक क्यों नहीं होते? वो रोने लगा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर कोई और पूछता तो मैं अपने ऐब को जाहिर नहीं करता, लेकिन आपने पूछ लिया है तो मुझे बताना जरूरी है। बात दरअसल ये है हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा है, एक कपड़ा। मैं यहां से नमाज पढ़कर जाता हूं तो आप उतार करके अपनी बीवी को देता हूं और मैं कोने में बैठ जाता हूं, मेरी बीवी इसी कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ती है। एक कपड़ा है लेकिन शौहर और बीवी में से किसी की नमाज नहीं छूट रही है। आज हमारे पास सैकड़ों कपड़े हैं लेकिन छूटती है तो नमाज छूटती है। मेरे दोस्त, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 4 रोटी बनाती है, दस्तरखान बिछाती है। हजरत अली उस दस्तरखान पर मौजूद है, हसन और हुसैन मौजूद हैं और खुद हजरत फातिमा ज़हरा उसी दस्तरखान पर बैठ जाती हैं। पहले का दस्तूर यह था कि पूरे घर के लोग, पूरे घर के अफराद एक दस्तरखान पर बैठकर खाते थे। नबी ने इरशाद फरमाया अगर किसी घर में घर के तमाम अफराद एक दस्तरखान पर बैठकर खाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर से नफरत को दूर कर देता है और आपस में मोहब्बत पैदा कर देता है। मेरे दोस्त, एक घर में आप लेने के लिए लाजिम है कि घर में खाइए सब कोई तो एक दस्तरखान पर बैठकर खाइए, यही नबी की सुन्नत है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक एक रोटी सबको दे दिया। हजरत अली को भी 1 रोटी, हजरत हसन और हुसैन को भी 1-1 रोटी और 1 रोटी खुद हजरत फातिमा रखती हैं। हजरत अली ने वो रोटी खा ली है, हजरत हसन और हुसैन ने भी वो 1 रोटी खा ली है। हजरत फातिमा ज़हरा आधी रोटी खाती है, आधी रोटी को आंचल में बांध लेती हैं। हजरत अली ने इरशाद फरमाया फातिमा पूरी रोटी खा लो, 3 दिन से तुमने कुछ खाना नहीं खाया था। हजरत फातिमा कुछ नहीं बोलती हैं। हजरत हसन और हजरत हुसैन ने भी अर्ज किया अम्मी जान आप पूरी रोटी खा लें, लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा कुछ नहीं बोलती हैं, नमाज अदा करती हैं और नबी के घर तशरीफ ले आती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नबी की बेटी मौजूद है हजरत फातिमा। नबी नमाज अदा करके घर आते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा उठ जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की पेशानी को चूम लेते हैं और अपनी जगह पर बैठाते हैं। और मेरे दोस्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बैठ जाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अपने आंचल से रोटी निकालती है और उसे लुक़मा बनाकर नबी के मुंह में डालती है। नबी इरशाद फरमाते हैं फातिमा अगर तू आज अपने बाबा को रोटी नहीं खिलाती तो तेरे बाबा का ये 4था दिन होता कि पानी पीकर सो जाता। ये उस दौर की बात कर रहा हूं जब खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन शरीयत पर अमल करते हुए लोग नजर आते थे। खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते थे। खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन आपस में मोहब्बत थी। खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन गरीबों की मदद करते थे। आज सब कुछ होने के बावजूद आज हम शरीयत को भूले हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
इरशाद फरमाते हैं कि 3 दिन से मैं भूखा था, लेकिन मैं अपने लिए मांग तो नहीं सकता था, इसलिए कि मेरे लिए वो हदीस भी मौजूद थी। मैं नबी की बारगाह में मौजूद था कि इतने ही में एक नौजवान आया, आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे भीख मांगने की इजाजत दे दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, तेरे पास कुछ है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक प्याला है, एक कटोरा है घर में। नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ उस कटोरे को ले आओ। वो शख्स नौजवान जाता है, घर से कटोरा लाता है। नबी ने इरशाद फरमाया, इसको कोई खरीदेगा? एक शख्स खड़ा हुआ, कहा 1 दिरहम में खरीदूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया, कोई और ज्यादा करेगा? दूसरा शख्स खड़ा हुआ, कहा मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। आपने कटोरा उसे दे दिया और उससे 2 दिरहम ले लिया। उस शख्स से इरशाद फरमाते हैं, नौजवान, जा इस 2 दिरहम को लेकर बाजार जा, 1 दिरहम से आटा खरीद कर, गल्ला खरीद कर घर में रख दे, और 1 दिरहम से तू ये कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास आ जा। कुल्हाड़ी समझते ना आप लोग? कुल्हाड़ी समझते हैं ना, जानते हैं? ये अल्लाह बहुत अच्छे। जब जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल्हाड़ी को देखा था जंगल के दरख्तों ने ना, तो बहुत रोया था, जिंदाबाद बांस वगैरह ने बहुत रोया। तो बूढ़ा दरख्त था, उसने कहा, क्यों रो रहे हो? कहा, इंसानों ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है कि अब हम लोगों की खैर नहीं है, पूरे जंगल को एक ही हथियार खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी काफी है। लेकिन वो बड़ा हंसा वो बूढ़ा दरख्त और कहा, नहीं, ये कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर सकता, हमारा बिगाड़ नहीं सकता। कहा, बड़ा तेज है। कहा, कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ कर नहीं सकता। कहा, देखते नहीं हो कि कितना धारदार है? कहा, नहीं, कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को तबाह बर्बाद कर सकता है, जबकि हमारी बिरादरी में से कोई इस कुल्हाड़ी के साथ लग जाएगा, यानी लकड़ी अगर कुल्हाड़ी के साथ लग गई तो एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। मेरे दोस्त, खुदा की कसम, खानदान में अगर एक आदमी खराब हो जाता है और वो एक आदमी अगर दुश्मन से मिल जाए तो एक आदमी पूरे खानदान को तबाह बर्बाद करने के लिए जिंदाबाद। गांव में अगर एक आदमी खराब हो जाता है तो पूरे गांव को एक आदमी तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। मुस्लिम कौम को कोई दूसरी कौम कभी भी तबाह बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन इस कौम को अगर कोई तबाह बर्बाद करती है तो ये अपनी ही बिरादरी के लोग तबाह बर्बाद करते हैं। मुखबरी करने वाला मुसलमानों का यही मुसलमान होता है, और यही मुकद्दमा में उलझा देने वाला ये मुसलमान होता है। अपने पड़ोसियों को मुकद्दमे में उलझा करके उसको तबाह बर्बाद कर देने वाला मुसलमान होता है। मेरे दोस्त, यकीन जानिए, अगर कोई शख्स अगर चाहे तो एक शख्स अगर तबाह, एक शख्स अगर खराब हो जाए अपनी बिरादरी का, तो वो पूरी बिरादरी को तबाह बर्बाद करके रख देता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपका घर में कोई कभी किसी एतबार से खराब हो जाए, उसको कभी मत छोड़ो, बल्कि समाज के एतबार से उस पर बंदिश लगाओ और उसको सुधारने की कोशिश करो, ताकि आपने उस देश सुधार दिया तो पूरे समाज को आपने सुधार दिया, पूरे गांव को आपने सुधार दिया। बड़ा अच्छा मेरे दोस्त याद रखिएगा, आज हमारी और आपकी फितरत क्या है? अजीब फितरत हो गई है हमारी और आपकी। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं करते? अरे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? बोलिए ना, करते हैं ना? मक्का वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना। क्या बताया जाए, लोग ऐसे हैं आज मक्का की खेती करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, मकई की खेती करते हैं और जाते हैं अपनी खेत देखने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ताज्जुब उस वक्त में होता है जब उधर से अपनी खेत देखने जाएंगे और उधर से पलटेंगे ना तो दूसरे के खेत का भुट्टा तोड़ लेंगे। ये कौन सी आदत है भाई? और अच्छा, दूसरा भी जाएगा अपनी खेत देखने के लिए, वो आपके खेत का भुट्टा तोड़ लेगा। आपने सोचा कि हमने बचा लिया, उसने सोचा हमने बचा लिया, और बचा किसी का नहीं, और दोनों ने हराम खाया, दोनों ने हराम खाया। ये है हमारी फितरत। अमीन आ गया, जमीन की नपाई हो गई, अब टटिया लग गया, बांस का खुट्टा दे दिया, 1 साल के बाद तो वो
बांस सड़ गया ना, अब उसके बाद फिर टटिया बदलना, वो पड़ोसी तो है नहीं, अमीन तो है नहीं, देखा इधर उधर, बस टटिया को एक बालिश तो उधर घसका दिया। ये क्या है भाई, ये कौन सी आदत है भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? याद रखिएगा, दूसरे की जमीन को अगर कोई शख्स नाजायज कब्जा कर लेता है, एक बालिश कब्जा करता है, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूरे रोए जमीन को समेट कर उसकी गर्दन पर डालकर उसे जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम में डाल देगा। मेरे दोस्त, ये हमारी और आपकी फितरत है। अजीब हालत हो गई है हम लोगों की, मां ताज्जुब लगता है। ये देखिए ना, वो हल जोतते 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 दूसरे के आल को, दूसरे के खेत को अपने खेत में मिला लेते। या अल्लाह, अभी आम का मौसम आ रहा है, आपके घर में चटनी मौजूद है, आपने कभी सोचा कि हमारा आम का तो दरख्त है नहीं, हमने आम खरीद कभी कभी नहीं लाया, ये चटनी आई कहां से? आपने कभी पूछा अपनी बीवी से, ये चटनी कहां से आई? मेरे दोस्त, खबरदार खबरदार, खुदा की कसम याद रखिएगा, ये चीजें हरगिज हरगिज जायज नहीं है। किसी की भी बगैर इजाजत के कोई चीज लेना हरगिज हरगिज जायज नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि वो नौजवान वो कुल्हाड़ी लाकर नबी की बारगाह में पेश कर दिया, नबी ने उसमें एक लकड़ी लगाई, इरशाद फरमाते हैं नौजवान जा, सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करना, जंगल निकल जाना और जंगल में लकड़ी दिन भर काटना, शाम के वक्त में बाजार में बेचना, और 1 महीना मेरे पास मत आना। 1 महीने के बाद वो नौजवान नबी की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, 1 महीना पहले मैं आपके पास आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, आज 1 महीने के बाद आया हूं तब मेरे पास 100 दिरहम मौजूद है। नबी ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तू भीख मांगने की इजाजत मांग रहा था, सुनो, जो शख्स भीख मांगता है अपने लिए, कल कयामत के दिन उसके चेहरे पर गोश्त नहीं रहेगा। अपने लिए भीख मांगना जायज नहीं। नबी ने इरशाद फरमाया था, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज्यादा बेहतर होता है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। यह मुस्लिम कौम खुदा की कसम देने वाली कौम थी, लेकिन आज लेने वाली कौम हो गई है। सही फरमा। आप जाइए बाजार में तो मांगने वाला मुसलमान नजर आता है, बस पे सफर कीजिए तो मांगने वाला मुसलमान, ट्रेन पर चलिए तो मांगने वाला मुसलमान, मस्जिद से बाहर निकलिए तो मांगने वाला मुसलमान, मजार से बाहर निकलिए तो मांगने वाला मुसलमान। क्या यह कौम सिर्फ भिखमंगा कौम हो गई है? मेरे दोस्तों, नबी ने फरमाया था, तुम वो कौम हो कि जिन्होंने समुंदर में घोड़े दौड़ा दिए थे, तुम वो कौम हो कि जिन्होंने खुश्की में कश्तियां को तैरा दिया। लेकिन आज हमारी हालत ये हो गई है कि मेरे दोस्त, आज हम दूसरे की दौलत पर नजर गड़ाए हुए हैं। या भी इलेक्शन आ रहा है, कोई किसी का झोला ढोएगा, कोई किसी के पीछे पीछे जाएगा। मेरे दोस्त, मैं तुमसे कहता हूं, क्या जरूरत है दूसरे के रोटियों पर नजर रखने वालों? अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मजदूरी करोगे तो 300-350 रुपये तुम्हें मिलेंगे। दिन भर तुम उसकी बेगारी कर रहे हो और उसके झोला को ढो रहे हो, क्या मिलता है तुमको? कोई उस नेता के पीछे है, कोई उस नेता के पीछे है। इसलिए मैं कहूंगा, सुनो, आज इस हिंदुस्तान में कोई किसी का गुलाम नहीं है, हर आदमी आजाद है। इसलिए मेहनत करो, मजदूरी करो, दूसरे की दौलत पे निगाह मत रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रोजियों में बरकत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा जुबैर आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, वो फरमाते हैं कि मैं अपने लिए मांग तो नहीं सकता था, लेकिन भूख से मैं कमजोर हो रहा था, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मैंने सोचा, एक तरकीब सोचा। खुद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रवायतों में आता है, आपने सोचा कि मैं सड़क के किनारे में अपने आप को डाल देता हूं, और सड़क के किनारे में फिर मैंने ये सोचने लगा कि सड़क के किनारे में अगर अपने आप को डालूंगा तो नबी ने फरमाया है
کہ بلا وجہ سڑک پر مت کھڑے رہو. نبی نے فرمایا ہے کیونکہ گزرنے والی میں کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے, تیری نگاہ اس پر پڑے گی تو گنہگار ہو جائے گا. نبی نے فرمایا کہ بلا وجہ سڑک پر مت کھڑے رہو, اور اگر تیری مجبوری ہے سڑک پر کھڑا ہونا تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھو. اور نبی نے ارشاد فرمایا اگر سڑک پر کھڑے رہو تو اس کے حق کو ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سڑک کا حق کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا سڑک کا حق یہ ہے کہ کوئی تکلیف دہ چیز سڑک پہ دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر دو, ہٹا دو. زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی نے فرمایا تھا کہ تکلیف دہ چیز کو سڑک سے ہٹا دو, لیکن آج ہم اپنے ٹیوب ویل کا پانی چھوڑتے ہیں تو سڑک پر چھوڑتے ہیں. اگر کوڑا کرکٹ ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھر سے نکال کر کے سڑک پر پھینک دیتی ہیں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو بھی صاف کرو, اپنے آنگن کو بھی صاف رکھو, اپنے دروازے کو بھی صاف رکھو, اور دروازے کے پاس جو سڑک ہے اس گھر والے کے لیے لازم ہے اس سڑک کو بھی صاف رکھے, اس لیے کہ اسلام نے صفائی دی ہے. اس نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ صفائی آدھا ایمان ہے, آدھا ایمان ہے. اس لیے پیاری ماں اور بہنوں اپنے گھر کو بھی صاف رکھو, اپنے بستر کو بھی صاف رکھو, اپنے آنگن اور اپنے دروازے اور اپنے سامنے میں سڑک کو بھی صاف رکھو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, سب سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان کی زبان سے یا ہاتھ اور ان کے پیر سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, اس سے بہتر کوئی مسلمان نہیں. زندہ باز. میرے دوست اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو سڑک کے کنارے ڈال دیا اور میں نے سوچا کہ کوئی گزرنے والا میں سے گزرے گا, وہ مجھے دیکھے گا تو دیکھ کر کے کہے گا ابو ہریرہ یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو, کیوں اتنے کمزور نظر آ رہے ہو؟ میں کہوں گا 3 دن سے کھایا نہیں ہو, تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر اور مجھے اپنے گھر میں کھلا دے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں بیٹھا ہوں کنارے میں, اتنے میں میری نگاہ پڑی, دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. میں نے سوچا عمر نے مجھے دیکھا تو انشاءاللہ تعالی وہ مجھے پوچھیں گے اور اپنے ساتھ لے جا کر کھلا دیں گے. لیکن حضرت عمر کا انداز کیا تھا کہ دوسرے کنارے سے آ رہے ہیں لیکن وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہیں یہ گزر نہ جائے, اس لیے میں نے ان سے سلام کیا, السلام علیکم یا عمر. حضرت عمر نے سلام کا جواب دیا لیکن دیکھا نہیں, ٹوکا نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر ان سے پوچھا اے عمر قرآن کی فلاں آیت بتا دیجیے. انہوں نے وہ آیت بتا دی, حالانکہ وہ آیت مجھے معلوم تھی لیکن میں نے اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے پوچھے. زندہ باد. لیکن انہوں نے پوچھا نہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور سرگردن جھکائے وہ چلے گئے. میں نے سوچا عمر نے نہیں پوچھا تب کون پوچھے گا, لیکن دیکھتا ہوں اتنے ہی میں کہ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں. لیکن ان کا بھی انداز یہی تھا, وہ بھی آ رہے تھے تو وہ ایک سڑک کے کنارے میں دوسرے کنارے سے آ رہے ہیں, گردن جھکائے قریب آئے. میں نے کہا السلام علیکم یا ابابکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق نے جواب تو دے دیا لیکن پوچھا نہیں. میں نے قرآن کی آیت پوچھی, انہوں نے بتا دیا لیکن پھر بھی نہیں پوچھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں رونے لگا جب صدیق نے نہیں پوچھا, عمر نے نہیں پوچھا تو کون پوچھے گا. لیکن اتنے میں میں دیکھ رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ رحمت للعالمین اللہ نور مجسم آ رہے ہیں, غریبوں کے آقا آ رہے ہیں, بے کسوں کے کس آ رہے ہیں, بے بسوں کے بس آ رہے ہیں. میں یہی تک دو میں تھا, یہی سوچ ہی رہا تھا کہ نبی قریب آ گئے اور نبی نے سلام کر دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا. نبی ارشاد فرماتے ابو ہریرہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوں. اللہ ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف لے کر چلے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رونے لگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تسلی دی اور گھر لے کر گئے اور مجھے دروازے پر بیٹھا دیا, اندر تشریف لے گئے. جیسے ہی نبی اندر جاتے ہیں اپنی بیویوں کو سلام کرتے ہیں. سرکار نے سلام کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سن رہا تھا اور ان کی ازواج نے سلام کا جواب دیا. میرے دوست ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو تو گھر میں جو ہے اس کو سلام کر لے, یہ نبی کی سنت ہے. اور میرے دوست اور اگر گھر میں کوئی نہ رہے
तब भी सलाम करो। किसको सलाम करो? नबी को सलाम करो। हम जैसे लोग जब जिस घर में सोते हैं और कोई नहीं रहता है तो नबी को सलाम करते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। क्यों? इसलिए कि अगर हम नबी को सलाम करेंगे, शामी और फतुल कदीर में ये मौजूद है कि हर मोमिन के घर में नबी की रूह रहती है। जब तुम सलाम करोगे तो नबी उस सलाम का जवाब देते हैं। तो जिस घर में नबी सलामती की दुआ दे देंगे उस घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला सिद्दीकी, नारे तकबीर। मेरा ईमान है कि नबी जिस घर में सलामती की दुआ दे देंगे उस घर में कभी बीमारी नहीं आ सकती है। इसलिए अपने घर में जाओ तो कोई ना रहे तो नबी को सलाम करो, यही उलमा ने फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते हैं, सलाम करते हैं, इरशाद फरमाते हैं अपनी बीवियों से, घर में कुछ बना है तो नबी की बीवियां अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपको तो पता है कि 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में भी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि खुदा की कसम मुझे बड़ा अफसोस आया कि मैं ही सिर्फ भूखा नहीं हूँ बल्कि नबी के घर आने वाले भी भूखे हैं। और हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अबू हुरैरा को क्यों नहीं पूछा था, उमर ने क्यों नहीं पूछा था? इसलिए कि उनके घर में भी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। अल्लाह अल्लाह, ये उस दौर की बात है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तेरे घर में क्या कुछ भी नहीं है घर में? तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, नबी की बीवी है, हम सब की माँ है, मोमिनों की माँ। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा वो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह घर में तो कुछ नहीं है लेकिन एक सिहाबिया आई थी और आने के बाद उन्होंने 1 प्याला दूध मुझको पेश किया था, तो या रसूल अल्लाह मुझको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको छोड़कर दूध अल्लाह अल्लाह, इसलिए मैंने आपके लिए वो दूध छोड़ी हो। अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपसे बताऊं, एक बात मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके घर में, अल्लाह न करे कैसा हो, अगर आपकी बीवी 2-3 दिन से भूखी हो और कोई दूध दे उसको, तो वो आपके लिए रखेगी कि खुद पी लेगी? खुद पी लेगी कि नहीं पी? खुद पी लेगी, कभी भी आपके लिए नहीं रखेगी जी। लेकिन नबी की बीवियां हैं, अल्लाह अकबर, नबी 3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, नबी की बीवियां भी कुछ नहीं खाई हैं, लेकिन दूध पेश किया है तो उन्होंने वो दूध नबी के लिए रख छोड़ी है। अल्लाह अकबर। सबसे बेहतर औरत वो है जो अपने शौहर को खुश रखती है। नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुरा देती है, अल्लाह तबारक व तआला उस बीवी के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ए प्यारी माँ और बहनों, अगर आप अपने शौहर को देख के सिर्फ मुस्कुरा दो, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा। जिंदाबाद। आज की बीवियां अपने शौहर को देख के नहीं मुस्कुराती, नहीं मुस्कुराती, नहीं मुस्कुराती, नहीं मुस्कुराती, मुस्कुराती है, यकीन जानिए मुस्कुराती है, लेकिन शौहर को देख के नहीं मुस्कुराती, बहनोई को देख के मुस्कुराती है। जी जी बिल्कुल सही। भाई को देख के मुस्कुराती, सही फरमा रहे हैं हज़रत, बिल्कुल देवर को देख के मुस्कुराती है। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल हक। बड़ा नबी ने फरमाया था कि शौहर को देख के मुस्कुराओ, और यहाँ आप शौहर को देख के नहीं मुस्कुराती हैं, उसका चौखुटा बदल जाता है, लेकिन मुस्कुराती है तो अपने बहनोई को देखकर। अल्लाह। प्यारी माँ और बहनों सुनो, कोई औरत अगर अपने बहनों से मजाक करती है और उसका शौहर अगर देख लेता है तो वहीं से उसके दिल पर सिया धब्बा पड़ जाता है, और वही धब्बा आगे चल के तलाक का रूप ले लेता है। अगर तुम चाहती हो कि तेरा शौहर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, खबरदार खबरदार, बहनों से मजाक की बात करती हो,
बहनोई के सामने में बगैर पर्दा के आना भी जायज नहीं, बिल्कुल हक। सन भाइयों से बोलना भी जायज नहीं है, देवरों के सामने में बगैर पर्दा के आना जायज नहीं है। देवर शौहर का छोटा भाई होता है और छोटा भाई बेटे की तरह होता है। बेटों से मजाक जायज नहीं, देवर से मजाक जायज नहीं। बड़ा भाई बाप के मंजिल में है और उसकी बीवी मां की मंजिल में है, भाभी मां की मंजिल में होती है। मां से मजाक जायज नहीं, भाभीयों से मजाक जायज नहीं। इसलिए लोगों, अगर शरीयत पर अमल करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि आपके घर से नफरत दूर हो जाए, ए प्यारी मां और बहनों, कभी भी अपने देवरों से मजाक मत करो, कभी भी अपने बहनों से मजाक मत करो। हमारी मां और बहन भी सुने, आते हैं उनके पास उनका दामाद, उनका मेहमान, और वो कहता है हमारी बीवी बीमार पड़ गई, आपकी बेटी बीमार पड़ गई है, हमारी साली को भेज दीजिए ना। ए सास का सीना चौड़ा हो जाता है और वह अपनी जवान बेटी को, उनकी साली को उसके साथ भेज देती है और यहीं से बुराई का दरवाजा खुल जाता है। जिस समाज में सालियों से मजाक को जायज समझ लिया हो, और जब तुम जवान सालियों को उनके बहनों के हवाले करोगे, क्या होता है समाज में आपको नहीं मालूम है? तुम बाप हो, तुमको पता नहीं, तुम मां हो, तुमको मालूम नहीं। इसलिए मां के लिए लाजिम है कि वो कहे, सास के लिए जरूरी है कि वो कहे, खबरदार खबरदार, मैंने एक बेटी तेरे हवाले किया है, अब दूसरी बेटी को मैं तेरे हवाले नहीं कर सकती। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम अपनी खाला, अपनी बहन को बुला के लाओ, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती हूं। खुदा की कसम, जिस दिन सास ये बोल देगी, उसी दिन मैं कहता हूं इंशाअल्लाह ताला ज़िना के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे, ताले लग जाएंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए प्यारी मां और बहनों सुनो, इस दुनिया में औरत के लिए मर्द से बढ़कर, उसके शौहर से बढ़कर कोई नहीं। एक औरत के लिए शौहर से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, और एक मर्द के लिए उसकी मां से बढ़कर कोई नहीं। आपके लिए आप सबसे बरगुजीदा हस्ती कोई है, अल्लाह उनके रसूल के बाद तो तेरी मां है, और आपके लिए अगर कोई बरगुजीदा हस्ती है तो तेरा शौहर है, शौहर है। मेरे दोस्त, शौहर का मकाम इतना जबरदस्त है, नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत रोटी बना रही है और तवे पर रोटी को डाल चुकी है और इतने ही में उसके शौहर ने उसको आवाज दिया, उस औरत के लिए लाजिम है कि तवे पर रोटी को जलती हुई छोड़ दे, पहले अपने शौहर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाए। शौहर का मकाम इतना जबरदस्त है, नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई औरत अपने घर के अंदर नफल नमाज पढ़ रही है, उसका शौहर आया, उसे पता नहीं है कि मेरी बीवी नफल नमाज पढ़ रही है, लेकिन उसने आवाज दिया अपनी बीवी को, तो उसकी बीवी के लिए लाजिम है कि नफल नमाज को तोड़ दे, बाद में उसकी कज़ा करे, पहले अपने शौहर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाए। इतना बड़ा शौहर का मकाम है प्यारी मां और बहनों, कि उलमा फरमाते हैं कि अगर घर में शौहर है और शौहर के बगैर इजाजत औरत नफली रोजा रख चुकी है, अब दिन के वक्त में शौहर को ख्वाहिश पैदा हो गई, उसने अपनी बीवी को आवाज दिया, बीवी के लिए लाजिम है कि नफली रोजे को तोड़ दे, पहले अपने शौहर के हक को अदा करे, बाद में वो नफली रोजे की कज़ा करे। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा हक है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर शौहर के जिस्म में फोड़े फुंसी हो जाए और उसमें पीप भर जाए और एक औरत अपनी जबान से चाट चाट कर उस फोड़े फुंसी को साफ कर दे, तब भी वो शौहर के हक को अदा नहीं कर सकी, नहीं कर सकी। शौहर का मकाम इतना जबरदस्त है, नबी ने तो आखिरी बात कह दी है। नबी फरमाते हैं कि अगर मैं गैरे खुदा को सजदा करने को कहता तो औरतों को हुक्म देता कि तुम अपने शौहरों को सजदा किया करो, शौहरों को। मेरे दोस्त, इतना बड़ा मकाम है शौहर का। ओ शौहर लोग सोच रहे होंगे कि बाप रे बाप, आज मुफ्ती साहब ने इतना बड़ा, हम लोगों को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा मकाम है, बहुत बड़े हम लोग। अरे भैया, आपका उनका भी मकाम है कि नहीं? कोई खाली आप ही का है, उनका कोई मकाम नहीं, वो खाली मार खाने के लिए आई है।
वो अपने माँ बाप को छोड़ करके मार खाने आई है। कुछ लोग इतना बेवकूफ होता है कि वो अपनी बीवी को मारने का प्लान बनाते। एक आदमी था, बड़ा मारता था अपनी बीवी को, बहुत मारता था। एक रोज मछली मारने के लिए चला गया और इत्तेफाक से मछली लग भी गई। उसने प्लान बनाया कि आज हम बीवी को मारेंगे खूब। क्या मारेंगे? जाएंगे मछली रख देंगे और उसके बाद चले जाएंगे। 1 घंटे के बाद खाना निकालो। जब वो शोरबेदार मछली बना देगी तो मारेंगे कि तल के क्यों नहीं बनाएंगे, और अगर तल करके बनाएगी तो मारेंगे कि तूने कच्चा क्यों नहीं रखा। मारेंगे जरूर। आया और आकर के घर में मछली को पटका, आंगन में चला गया। बीवी मार खा खा करके बहुत चालाक बन गई थी। उसने देखा तेवर ठीक नहीं है मियाँ जी का। उसने क्या किया कि कुछ मछली शोरबेदार बना दी और कुछ मछली तल के बना दी और कुछ मछली कच्चा ही रख दिया। 1 घंटे के बाद आ गया, काय लाठी, काय लाठी। लाठी लेके बैठ गए। कहा लाओ खाना। खाना दिया, उन्होंने शोरबेदार मछली दी। कहा सारी मछली को शोरबेदार बनाया, तल के क्यों नहीं बनाया? लाठी उठाया। कहा तल के भी बना दिया हूं सरकार। कहा तल के बनाया, तूने कच्चा क्यों नहीं रखा? कहा सरकार कच्चा भी रखा हूं। फाड़ लाठी रख दिया। कहा साला सारा प्लान खराब हो गया, सारा प्लान खराब हो गया। यकीन जानिए मारने का प्लान। लेकिन खाया पिया और बाहर आकर के इसी अफसोस में कि मार तो नहीं सका और चारपाई पे लेट गया। जाड़े का जमाना, रात का वक्त। बरसात में आपने देखा होगा कि जो है आसमान में सफेद लकीर आ जाती है नहीं? तो उसने पूछा अपनी बीवी से, सफेद लकीर कैसी है? कहा कि ये फरिश्तों का सड़क है। कहा अच्छा सड़क है। अच्छा, लिया लाठी मारना शुरू किया कि फरिश्तों के सड़क के नीचे में तूने चारपाई बिछा दी ताकि फरिश्ते जो है घोड़े से जाएं और वो गिर पड़े घोड़े से और हम मर जाएं। मारना शुरू कर दिया। या अल्लाह, वो सिर्फ मार खाने के लिए आई? नहीं भाई, आपका जैसे हक है वैसे उनका भी हक है। उनका भी हक ये है कि आप उनके खाने का इंतजाम करें, उनके पहनने का इंतजाम करें, उनके पेशाब और पाखने का इंतजाम करें, उनके लिए गुसल खाना का इंतजाम करें। हरगिज ये औरतों के लिए हरगिज जायज नहीं है कि ये सड़कों पर ये बांस के बाड़ी में जाए। बास जमीर मुसलमान शरीफ खानदान का आदमी जैसे अपने घर का इंतजाम करता है रहने के लिए, वैसे ही अपनी बीवी, बेटी, पुताओ और अपनी सास सब के लिए, मां बहन के लिए वो पाखाना और पेशाब का इंतजाम करता है, गुसल खाने का इंतजाम करता है। अगर किसी के घर में पाखाना वगैरह का इंतजाम नहीं है, गुसल खाने का इंतजाम नहीं है, तो प्यारी मां और बहनों सुनो, यहां से जाना और कहना कि जब तक पेशाब और पाखाना गुसल खाने का इंतजाम नहीं करोगे उस वक्त तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी। खाना बंद कर दो इन लोगों का। और जिस दिन अगर तुमने इसलिए खाना बंद कर दिया कि वो पेशाब और पाखाना गुसल खाने का इंतजाम करे तो अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। इसलिए आप अपने घरों में ही पेशाब और पुख्ता नहीं हो सकता कच्चा इंतजाम करें। और ऐसे ही हरगिज तालाब में अपनी औरतों को मत भेजो नहाने के लिए, नदी में मत भेजो नहाने के लिए, सड़क के किनारे गड्ढे में मत नहाने के लिए भेजो। ये हरगिज जायज नहीं है। घर में औरतें नहाएं और चारों तरफ अपने ट्यूबवेल के गुसल खाने को घेर करके नहाएं। अगर टटिया हो तो टटिया घेरो, अगर बोरा हो तो बोरा घेरो, कपड़ा है तो कपड़ा घेरो, लेकिन घेर करके नहाओ। हरगिज बेपर्दा नहाना अपने घर के आदमी के सामने भी औरतों को जायज नहीं है। इसलिए प्यारे, आपके लिए लाजिम है कि आप अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल में ढालिए। आज के बाद से यहां से उठिएगा तो अपने गुस्ल खाने का भी इंतजाम जरूर कीजिएगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हमारी माँ और बहनें यहां से जाएं तो आई हैं आप तो कुछ सीख करके जाइए, कुछ ले करके जाइए। और यहां से आप अगर कुछ सीख करके जाएंगी तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ए प्यारी माँ और बहनों, देखिए हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा लाओ दूध ले आओ, दूध ले आओ, मेरे यहाँ मेहमान आया हुआ है। हजरत आयशा ने दूध पेश किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी दूध लेकर आ रहे हैं। आने के बाद नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने सोचा कि मुझको दूध देंगे पीने के लिए।
لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ ایسا کرو، وہ جو مدرسہ ہے نا اصحاب صفہ، نبی نے جو پہلا مدرسہ قائم کیا تھا مسجد نبوی میں، کہا نبی نے فرمایا جاؤ جتنے طالب علم ہے سب کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے یا اللہ ایک پیالہ دودھ، اب مدرسے کے اتنا بچہ اب کیا ہوگا؟ لیکن نبی کا حکم تھا، چلے گئے۔ اور اس دن 70 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 70 بچے تھے نبی کے مدرسے میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے سب کو بلا لیا نبی کے گھر میں، اور نبی نے حکم دیا سب کو بیٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ مدرسے کے بچے کو بلا کر اپنے گھر میں لانا اور کھلانا یہ نبی کی سنت ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ نبی کی سنت ہے اپنے گھر میں مدرسے کے بچے کو لا کر کھلانا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ مہمان رسول ہیں، مہمان رسول، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے۔ اور اگر قرآن کھانے کے لیے آپ بلاتے ہیں تو یہ دن بھر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں قرآن دے دوں ہاتھ میں اور بیٹھا دوں اور کہوں کہ پڑھیے یہاں دن بھر، تو آپ پڑھ سکیے گا؟ 1 گھنٹے میں تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، 1 گھنٹے میں حالت خراب۔ تو یہ مدرسے کے بچے دن بھر قرآن خوانی کریں گے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ ادھر ادھر جائیے گا، بس گنتی ہوگی۔ اس لیے مہمان رسول کو اپنے گھر میں قرآن خوانی کے لیے بلاؤ تو کہو آپ کی جتنی طبیعت دیر چاہے پڑھ لیجئے۔ ہم لوگ بھی بلاتے ہیں مدرسے کے بچوں کو، ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو خود لے کر جاتے ہیں اپنے گھر، لیکن خدا کی قسم کبھی نہیں کہا کہ تم پڑھو، بلکہ میں کہتا ہوں جو تمہاری طبیعت میں چاہے، قل هو اللہ پڑھ لو 3 مرتبہ، اور الحمد شریف پڑھ لو، سورہ یاسین کو ایک آدمی پڑھ لو اور سب کو سنا دو، اور اس کے بعد جو بھی شیرنی ہے، اور اس کے بعد یاد رکھیے گا مہمان رسول صرف آپ کے گھر میں چلے جائیں گے تو خدا کی قسم آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان کا جانا ہی کافی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے، عام مہمان کی بات کر رہا ہوں، عام مہمان کی بات کر رہا ہوں، مہمان رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام مہمان اگر کسی کے گھر میں آتا ہے تو اور وہ گھر والا اپنی حیثیت کے مطابق ان کی عزت کرتا ہے تو اس مہمان کے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے گھر والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ جب عام مہمانوں کی یہ بات ہے تو یہ جو مہمان رسول ہیں، مہمان رسول ہیں، یہ اگر آپ کے گھر میں چلے جائیں تو میرا دل بولتا ہے خدا کی قسم آپ نے جس کی مغفرت کی دعا کروانے کے لیے لائے ہیں نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور میرے دوست اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی، میں پریشان ہوتا تھا، تو بازار سے میں مٹھائی منگواتا، مٹھائی لے کر کے منظر اسلام مدرسہ اپنا پہنچتے تھے، اپنے ہاتھ سے بچوں کو مٹھائی تقسیم کرتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے، کھلانے کے بعد سب کو جمع کر لیتے اور ارشاد فرماتے خود اعلیٰ حضرت کہ میں کہتا تھا میں خود پریشان ہوں، کچھ مصیبت میں ہوں، دعا کر دیجئے۔ وہ طالب علم دعا کرتے تھے۔ اعلیٰ زندہ باد۔ جب میں گھر آتا تھا تو صبح ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مصیبت سے نجات زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ اس لیے میرے دوست آپ بھی کبھی بھی کوئی مصیبت ہو آئیے مدرسہ اور ان کے منہ کو میٹھا کیجئے، کہیے بچوں سے کہ آپ میرے لیے دعا کرو، یہ دعا کر دیں گے آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ میں خود کرتا ہوں ایسا، میں خود کرتا ہوں ایسا۔ اس لیے میرے دوست ان بچوں کو، یہ جب تک بچے تھے مہمان رسول تھے، آج یہ لوگ تو نائب رسول ہو گئے، آج تو نائب رسول ہو گئے، آج تو ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا میرے دوست۔ اس لیے آپ باپ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے باپ ہیں، یا آپ کا آج بیٹا نہیں حافظ صاحب ہو گیا، قاری صاحب ہو گئے، اب آپ ماں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو حافظ صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، باپ کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، ماموں کے لیے بھی لازم ہے، چچا کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ باور کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی، اپنے بھانجے کو، اپنے بھتیجے کو وہ حافظ صاحب کا کر کے بلائیں، تاکہ گھر سے عزت ملتی ہے، گھر سے عزت بگڑتی ہے۔ آپ عزت کرو گے
تو سماج اسے عزت دے گا. آپ عزت کرو گے تو دنیا اس کی عزت کرے گی. اس لیے میرے دوست حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے جب فرمایا تو 70 طالب علم آ گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب کو میں نے بیٹھا دیا اور میں بھی داہنی جانب جا کر چھپ کے بیٹھ گیا. کیوں بیٹھ گیا چھپ کر کے؟ اس لیے کہ نبی کی عادت تھی کہ داہنے جانب سے بانٹتے تھے. اور میں نے سوچا کہ ایک پیالہ دودھ ہے, یہ دودھ نہ جانے کہاں ختم ہو جائے گا, اس لیے میں داہنے جانب بیٹھا تاکہ نبی جب بانٹیں گے تو سب سے پہلے مجھے دیں گے. میں بہت ہی دبلا ہو گیا تھا, میں بڑا کمزور ہو گیا, 3 دن سے بھوکا تھا نا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چھپ کے کیوں بیٹھا؟ اس لیے کہ مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں نبی نے مجھ کو ہی کہہ دیا بانٹنے کے لیے, تب کیا ہوگا. کیونکہ جب نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بانٹنے کے لیے کہے تو بانٹو, بچے تو لو اور نہ بچے تو صبر کرو, اللہ ثواب عطا فرمائے. لیکن آج ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے, میلاد وغیرہ میں جب دیتے ہیں نا آخری میں بانٹنے کے لیے دیتے ہیں نا وہ مٹھائی وغیرہ, تو کیا کرتا ہے جس کو بانٹنے کے لیے 2-4 مٹھی پہلے رکھ لیتا ہے تب بانٹتا ہے. یہ خیانت ہے, اچھی بات نہیں ہے. بلکہ بانٹیے, اگر بانٹیے بڑی اچھی بات ہے. اگر بچ جائے تو لیجیے, اگر نہیں بچے تو صبر کیجیے, اللہ آپ کو صبر کا ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا, لیکن نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر چلا گیا؟ ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. کہا یہاں لو, یہ بانٹو بانٹو, یہ لو بانٹو, پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کبھی میں وہ دودھ کو دیکھتا تھا, کبھی وہ 70 آدمی کو دیکھتا تھا. وہ دودھ کا 70 آدمی, نبی کا حکم تھا, کہا جاؤ بانٹو. تب داہنے طرف چلا گیا, اس کو دیا. میں نے سوچا کہ ایسے ہی بس انہیں ایک گھونٹ لیا, پھر ایک گھونٹ لیا, ہم سوچے تیسرے گھونٹ میں واپس کر دے گا. لیکن جب پینا شروع کیا نا تو میں دیکھ رہا ہوں ان کے گلے کو دیے جا رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اب یہ سارا پی جائے گا, تو میں ہاتھ بڑھایا, نبی کو دیکھا تو میں نے پھر ہاتھ کو کھینچ لیا اور ایر اٹھا کے میں نے دیکھا کہ میں مایوس ہو گیا, یہ چھوڑے گا نہیں, سب پی لے گا. لیکن یہ ہوتا ہے اگر صبح سویرے آپ چائے پیجئے, آپ کا پوتا ہے, نواسا ہے, بیٹا ہے چھوٹا, اور اس کو چائے پینے کی ضرورت ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ مارے گا کہ کہیں دادا ابا جو ہیں کہیں پوری چائے نہ پی لیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے سوچا کہ کہیں دودھ سب نہ پی لے, لیکن نبی دیکھ رہے تھے, میں مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا. لیکن خدا کی قسم جب اس نے دودھ کا پیالہ واپس کیا تو میں حیران ہو گیا کہ پہلے دودھ زیادہ تھا کہ اب دودھ زیادہ تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر میں نے دوسرے کو دیا, اس نے بھی پی کر کے واپس کیا, وہ اتنا ہی دودھ. پھر تیسرے کو دیا, 70 نے پی لیا, لیکن پیالے کا دودھ کم نہیں ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صحابہ کرام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ دودھ حاضر ہے. نبی مسکراتے ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو پی لے. حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد ایک گھونٹ, دوسرا گھونٹ. یاد رکھیے گا پانی, دودھ, چائے, کھانا, یہ کھڑے ہو کر کے کھانا جائز نہیں. کھڑے ہو کر کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ پانی کھڑے ہو کر پی لے تو انگلی ڈالے حلق میں اس کو قید کر دے, ورنہ ایسی بیماری ہوگی کہ اس کا علاج نہیں ہے. پیاری ماں اور بہنوں, ٹی ویل کے پاس کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہو نا, آج کے بعد سے کھڑے ہو کر کے پانی مت پیو, منع کیا ہے نبی نے. آپ لوگ بھی چائے پیتے ہیں ہوٹل میں کھڑے ہو کر کے, مت پیجئے, جائز نہیں ہے. کھڑے ہو کر جانوروں کے عادت ہے کھانا پینا. کوئی بھی جانور کو آپ دیکھیے گا وہ کھڑے ہو کے کھائے گا. کوئی بھی آج تک کسی جانور کو بیٹھ کے کھاتے ہوئے آپ نہیں دے سکتے. جب بھی جانور کھائے گا تو کھڑے ہو کر کے کھائے گا. اور آدمی جب بھی کھاتا ہے انسان تو بیٹھ کر کھاتا ہے. اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے بیٹھ کر کھانا پینا, اور جانوروں کی فطرت ہے کھڑے ہو کر کھانا پینا. اور اگر کہیں کوئی شادی بیاہ میں کھڑے ہو کر کے دعوت دے آپ کو کھانے کے لیے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو جانور بنانا چاہتا ہے. جی بالکل صحیح. اور سنیے, وہ آپ کو بھک منا بنانا چاہتا ہے. بھک منگا, پلیٹ لیجئے وہاں سے, اس کے آگے جائیے, وہ
पुलाव देगा, उसके आगे जाइए वो गोश्त देगा, उसके आगे जाइए वो मिठाई देगा, उसके आगे जाइए वो पापड़ देगा। मांगने के लिए सिखाता है, भिखमंगा बना देता है। अगर आप शरीफ आदमी हैं, बाज़मीर आदमी हैं, इज्जतदार आदमी हैं, तो आप ऐसी दावत में हरगिज़ भी शरीक मत होइए। ऐसी दावत में शरीक होना जायज नहीं। जिंदाबाद। मेरे दोस्त, अच्छा आप देखिए ब्राह्मण की शादी और राजपूत की शादी में कभी भी डीजे नहीं बजता है। जितने भी फॉरवर्ड कौम है उनकी शादियों में देखोगे डीजे नहीं, लेकिन चमार, डोम, भंगी, दुसात, झांगड़, मुसार, संताल, ये सब डीजे बजाता है, ये सब डीजे बजाता है। और मुसलमानों ने जो सीखा है इन्हीं लोगों से सीखा है। इसीलिए हम जैसे लोग जब किसी मुसलमान को अपने बेटा बेटी की शादी में डीजे बजाते देखते हैं तो समझ लेते हैं ये शरीफ खानदान का आदमी नहीं होगा। जी जी बिल्कुल सही फरमा। ये जलील खानदान का आदमी होगा। जो शरीफ खानदान का होता है वो कभी भी डीजे अपने बेटा और बेटी की शादी में नहीं बजवाता है। जो जलील खानदान का होता है, जो नीचे खानदान का होता है, वही ये सब काम करता है। इसलिए अल्लाह ने आपको अगर शरीफ बनाया है, बाज़मीर बनाया है, अगर आपको इज्जतदार बनाया है, तो आप जलील वाला काम मत कीजिए, जलील वाला काम मत कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए और पानी पीना शुरू किया, खाना दूध पीना शुरू किया। नबी ने फरमाया और पियो, उन्होंने और पिया। नबी ने फरमाया और पियो, कहा या रसूल अल्लाह अब गुंजाइश नहीं है। और उनके बाद हजरत अबू हुरैरा ने नबी को दे दिया और नबी सबसे आखिरी में वो दूध पीते हैं। इस जगह ठहर कर बात कह दूं, ए मेरे दोस्त, नबी से बढ़कर कोई पीर होगा? बोलिए बोलिए, नबी से बढ़कर कोई पीर, नबी से बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। तो नबी ने दूध कब पिया? जब सब मुरीदों ने पी लिया तब पिया। मालूम ये हुआ कि मुरीदों का झूठा कभी कभी पीर साहब को खा लेना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। याद रखिएगा, खाली मुरीदों को मत खिलाओ अपना झूठा, कभी कभी उनका झूठा भी पी लो। ये नबी की सुन्नत अदा। जिंदाबाद। और मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा कि नबी की तरह कोई उस्ताद नहीं, इसलिए नबी ने अपने शागिर्दों को पिलाने के बाद दूध पिया है। इसलिए उस्ताद को भी चाहिए कि कभी कभी अपने शागिर्दों का झूठा पी ले, नबी की सुन्नत अदा हो जाए। जिंदाबाद। इसलिए मेरे दोस्त, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, तूने समझा था कि इस एक प्याले से क्या होगा, लेकिन सुन, तेरा नबी अगर चाहे तो इस एक प्याले से सारी कायनात को पिला सकता है। पीने वाला तो कम हो सकता है, लेकिन तेरे नबी का दूध कम नहीं हो सकता। जिंदाबाद। मेरा नबी साहिब इख्तियार है, मेरा नबी मुख्तार है, मेरा नबी ताकत व कुव्वत वाले हैं। अल्लाह ने मेरे नबी को इख्तियार वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दीन दुनिया रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और ये बच्चे जो फारिग हुए हैं, परवरदिगार आलम हमेशा इन्हें मसल के अहले सुन्नत व जमात यानी मसल के आला हजरत पर हमेशा कायम और दायम रखे। और हम सबको भी अल्लाह ताला ईमान पर हमेशा कायम रखे और ईमान पर ही खात्मा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।